Dear students, I am teaching you chapter number 1, food. And I discussed to you about plants take up carbon dioxide from the atmosphere through the stomata present on the undersurface of their leaves in the last video. Plants take up water from the soil through their root system. During photosynthesis, the stomata remain open. Plants get nitrogen from the soil provided by fertilizers, manures, and from the salts prepared by symbiotic bacteria and nitrobacter by fixing up the atmospheric nitrogen. I hope you all understand these topics with the help of last video. मैं उम्मीद करती हूँ लास्ट वीडियो की हेल्प से आप ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे. Now I am going to teach you about the other modes of nutrition in plant. You all know very well that green plants can make their own food from carbon dioxide and water in presence of chlorophyll, a green pigment present in green leaves, and sunlight. So green plants are autotrophic. We have discussed about it in the videos. Plants which do not contain chlorophyll, or you can say non-green plants, depend on another living organism for their food. Thus the plants which do not contain chlorophyll are heterotrophs and their modes of nutrition is heterotrophic. Finally, ये हम अब तक जान चुके हैं कि what is photosynthesis, and the plant which can make their food with on is known as autotrophs also. And there are some kinds of another plant, कुछ अलग तरह के प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, जिनमें ये ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होते हैं. वे अपने लिविंग के लिए टोटली अदर्स पर डिपेंड होते हैं. Okay, because in such type of plants there is not chlorophyll pigments. इस टाइप के प्लांट्स को भी हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं. ये प्लांट्स हैं फिर भी ये हेट्रोट्रॉप्स हैं बिकॉज इट हैज़ नॉट ग्रीन pigments. It cannot make its food, and such type of mode of nutrition is also known as heterotrophic nutrition. इसको हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. Now various types of heterotrophic nutritions are. What are they? You must have to know that there are two types of nutrition. First is autotrophic nutrition and another is heterotrophic nutrition. And once again, this heterotrophic nutrition is divided into four groups, that are saprophytic nutrition, parasitic nutrition, insectivorous nutrition and symbiotic nutrition. First we will discuss about the saprophytic nutrition. What is this kind of nutrition? The plants which derive their food from the dead and decaying organic matter, they are called saprophytes or saprophytic plants और saprotrophs. It mean to say that कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड बनाने के लिए या यू कैन से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग यानी सड़े हुए और मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर्स पर उनकी ग्रोथ होती है, उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं. और उसी जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसी से वो अपना फूड बनाते हैं. इस टाइप के जो न्यूट्रिशन होती है उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. ओके, एंड सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज सैप्रोट्रॉप्स जस्ट लाइक हेट्रोट्रॉप्स. द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन in plants such as fungi, bread mold you can say, example is mushrooms, and some bacteria, that is lactobacillus acetobacter, is saprophytic because they derive their food
फ्रॉम द डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, बिकॉज ये अपना फूड कहाँ से बनाते हैं, जिस सड़े गले चीज़ पर ये उगते हैं, ग्रोथ इनकी होती है, उसी से ये अपना फूड भी बनाते हैं. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप मशरूम. And this is bread mold. These are saprotrophs. Okay? अपने घर के अंदर अगर आप किसी एक बंद बॉक्स में करके 2-4 ब्रेड के टुकड़ों को किसी ऐसे प्लेस पर रख दीजिए, अंधेरे डार्क प्लेस पर, जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर भी मिले, थोड़ी गर्मी भी मिले, सारी चीज़ें अगर उनको मिलेंगी, और 2 से 4 दिन के बाद अगर उस बॉक्स को ओपन करके आप देखेंगे तो उसके ऊपर इस तरह से एक लेयर आ जाती है. एक्चुअली व्हाट इज़ दिस? Actually these are a kind of plants. एक तरह के ये plants हैं, इनको बोलते हैं bread molds. ओके? और ये plants अपना फूड कहाँ से इनको मिलता है? इन प्लांट्स को फूड मिलता है इस ब्रेड से. जब ये ब्रेड सड़ने लगती है, जब ये ब्रेड डिकेड होने लगती है, तो इस पर इस तरह के जो प्लांट्स हैं ये सब ग्रोथ करते हैं, और इन्हीं ब्रेड से डेड एंड डिकेड जो ब्रेड होता है उसी से अपना ये फूड बनाते हैं. ओके? एंड saprotrophs secrete digestive juices on the bread and decaying matter and convert them into a solution. Then they absorb the nutrients from it. ये जो saprotrophs होते हैं, एक्चुअली ये अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से? दे प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस. एक तरह का डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो इसको ये प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो ये डिकेड मैटर होता है ये एक तरह के सॉल्यूशन में, एक तरह के चिपचिपे से मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी को ये जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ओके? अंडरस्टैंड व्हाट इट सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोट्रॉप्स क्या है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप. ओके? नाउ I am going to teach you about parasitic nutrition. The mode of nutrition in which plants derive their food from the bodies of some other green plants and animals is called parasitic. In such type of nutrition, plants derive their food from the bodies of some other green plants or animals. इस टाइप के न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना फूड ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या फिर किसी एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है इसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. द ग्रीन प्लांट और द एनिमल विच प्रोवाइड्स द फूड इज कॉल्ड द होस्ट. जिस प्लांट के ऊपर ये पैरासाइट्स स्टे होते हैं, रहते हैं, उनको बोलते हैं होस्ट. And the plants which derive their food from the bodies of the host plant and animals are called parasites. और इस टाइप के प्लांट्स को बोलते हैं parasites. The हिंदी मीनिंग ऑफ पैरासाइट इज एक्चुअली परजीवी, यानी दूसरों के ऊपर आश्रित रहकर जीने वाला. ओके? द पैरासिटिक प्लांट में बी टोटल पैरासाइट्स और पार्शियल पैरासाइट्स. ये 2 टाइप्स के होते हैं, या तो टोटली पैरासिटिक प्लांट्स होंगे, ओके, या पार्शियल पैरासाइट्स होंगे. यानी टोटली या तो डिपेंडेंट होंगे उस प्लांट के ऊपर जो होस्ट प्लांट है, या उससे कुछ एक रिक्वायरमेंट्स को वो ऑब्टेन करते होंगे. द प्लांट्स विच डिपेंड होली ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड आर कॉल्ड टोटली पैरासिटिक प्लांट. ऐसे प्लांट्स जो पूरी तरह से होस्ट प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, उनको बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स. एंड ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं कस्कुटा, Apodanthus. Certain bacteria and fungi are totally parasitic. You can able to see the parasitic plant Apodanthus, and this is Cuscuta on a host tea tree. Actually, the yellow color strip, एक येलो कलर का वायर टाइप का आपको दिख रहा है ना, इस प्लांट को जो लपेटा हुआ है, यही है कस्कुटा. ये इस प्लांट को रैप करके इस प्लांट से जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको
एब्जॉर्ब करता है। जिस प्लांट को लपेटे हुए है, जिस प्लांट को ये लपेटे हुए उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट, और दिस इज पैरासाइट कस्कुटा। दिस द नेम ऑफ दिस parasitic plant is Cuscuta. The plant which make a part of their food themselves by photosynthesis but derive other components such as water, minerals, etc. of food from the host plant are called partial parasitic plants. कुछ एक plants ऐसे होते हैं जो photosynthesis processing तो करते हैं but जो अदर कंपोनेंट्स हैं जस्ट लाइक वाटर, मिनरल, इसको ये होस्ट प्लांट के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, यानी पार्शियली, आंशिक रूप से ये उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। इस टाइप के पैरासाइटिक प्लांट्स को बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट या पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सम प्लांट्स लाइक मिस्टलटो इज पार्शियली पैरासिटिक। दिस इज मिस्टलटो बिकॉज दे मेक फूड देमसेल्फ because they have green pigments, their leaves are green, but they get water and minerals from the host plant. but जो अपना water और mineral ये obtain करते हैं, ये कहाँ से करते हैं? host plant से करते हैं। Now we are going to read about the insectivorous nutrition. What is insectivorous nutrition? The mode of nutrition in which green plants make their own food but depend on insects for nitrogenous food is called insectivorous nutrients. These plants are actually green. Then you can say in the process of photosynthesis they can make their food with on, अपना फूड ये खुद बनाते हैं, बट इनकी कुछ नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट होती हैं जैसा कि हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है। तो उन नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये जो प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। ओके, सो such type of mode of nutrition is known as insectivorous nutrition, and such type of green plants are known as insectivorous plants. The example of insectivorous plants are pitcher plant, sundew, bladderwort. Okay, these are some insectivorous plants. You can able to see this pitcher plant. पिचर प्लांट के अपर मोस्ट पोर्शन पे एक ढक्कन टाइप का, एक लिड टाइप का लगा हुआ होता है, वो ऐसे ओपन रहता है, ओपन कंडीशन में ये होता है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है सडनली ये लिड जो है वो कवर हो जाता है, और इंसेक्ट को अंदर ही अंदर ये डाइजेस्ट करके उसकी जो नाइट्रोजन उसके अंदर होता है उसको वो सक कर लेता है। देन उस लिड को ओपन करके ये जो प्लांट है उस कीड़े को, उस इंसेक्ट को बाहर जाने देता है, और इस तरह से ये अपनी नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। ओके, these plants are called insectivorous plant. The question arises here that how does pitcher plant derive its food from insects? कैसे इंसेक्ट से पिचर प्लांट अपने फूड को ऑब्टेन करता है? मैंने अभी आपको बताया कि पिचर प्लांट हैज़ लॉन्ग पिचर लाइक स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। पिचर मीन्स एक बिल्कुल एक जैसे सुराही होती है उस टाइप का इसका नेक होता है इस प्लांट का। और once again I am repeating that how does pitcher plant derive its food from insects? आखिर ये pitcher plant जो insectivorous plant है ये insect से अपना food कैसे derive करता है? It mean to say that कैसे obtain करता है? Pitcher plant has long pitcher like structure, okay, hanging from the tip of a leaf. लीफ के टिप से एक पिचर के टाइप का एक स्ट्रक्चर जो है बना हुआ होता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन क्लोज द ओपन द माउथ ऑफ द पिचर। और वो जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एक लिड की तरह काम करता है और उस प्लांट को ऊपर से कवर कर सकता है।
द इनर सर्फेस ऑफ द पिक्चर हैज़ हेयर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। और जो इनर सरफेस होता है पिक्चर का वो नीचे की ओर लटका हुआ होता है। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स द पिक्चर, उस पिक्चर में यानी जो एक घड़े के टाइप की, सुराही के टाइप की जो एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जैसे ही इंसेक्ट इंसर्ट करता है, एंटर करता है, उसका जो लिड होता है ऊपर से वो तुरंत क्लोज हो जाता है। इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और जो इंसेक्ट होता है वो उसके अंदर, जो पिक्चर के अंदर जो हेयर्स होते हैं उसमें फंस जाता है। द इंसेक्ट गेट्स डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर, और वो इंसेक्ट पिक्चर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं कंटिन्यूसली, उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरह से जो पिक्चर प्लांट है वो इस इंसेक्ट के ज़रिए अपना फूड ऑब्टेन करता है। आई होप you all understand that I have discussed today. Tomorrow we will meet again. Okay, students? With the next part of this chapter.